ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। Okay, let me first try to share my screen. Okay, can everybody see the screen here? Yes, we can. Okay, very nice. Okay, all right. So here we are doing the Swadhyay of Sri Swarup Sambodhan Grantha, written by great Acharya Sri Akalank Dev Swami. Up until now, as I explained in our last Swadhyay, the characteristics and the nature of soul from the perspective of multiplicity of views, what we call as Anekantavad, right? That was being explained. And through the 9 different shlokas, Acharya Deva had stated the nature and the characteristics and the description of the soul entity as is found within the context of Jain philosophy and literature. So we learned along the way number of things, right, in regards to the soul, how soul is. And in our last discussion, now we started talking about the effects of activities that are conducted by the soul and who bears the brunt of those activities as well as the fruits of those activities. Through shlok number 10, we discussed that last time. So now that this kind of explanation about the nature and characteristics is over, and now we are talking about what does soul do, what does it get in return. Now we are entering into another aspect of this grantha, now that talks about how to achieve the self, right? The whole process or the whole objective of having studied these granthas is to ultimately achieve the self. In the last grantha that we studied, Purushartha Siddhupay, right? It was right there in the title of that grantha, right? Purush means not the male. As we learned, if you remember, Purushartha Siddhupay. Purushartha doesn't mean self-effort there. Purush Artha as in the soul entity, how to attain the entity soul. उसके जो उपाय बताए हैं वो है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ, है ना?
सो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी अब क्या आचार्य करेंगे, हाउ टू अटेन द सेल्फ दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट 10 श्लोकास. Acharya will proceed on to talk about how to achieve it. And the next 3 shlokas are relatively straightforward and quite understandable, because they are going to be talking about these shlokas, they are going to be talking about respectively rational perception, rational knowledge, and rational conduct, which we know to be Samyak Darshan, Samyak Jnana, and Samyak Charitra. Right? So from that perspective, a topic that we are taking up now is heard of and thought of and read of number of times. So relatively it is straightforward. But let us just go through this and try to understand what Acharya Deva is propounding here. Right? So let us turn to shlok number 11 here, as you can see on your screen. Now what does Acharya say here? How to achieve the nature and the description we talked about so far. How to achieve the nature of the self. मतलब आत्म सिद्धि के उपाय क्या हैं? ऐसा प्रश्न जब आया तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपायः स्वात्मलब्धये तत्वे याथात्म संस्थितै मात्मनो दर्शनम मतम. कहीं मतम भी आया है, कहीं स्मृतम भी आया है. यहाँ इन्होंने स्मृतम लिया हुआ है. एक दो ग्रंथों को जो मैंने देखा हुआ है उसमें मतम आया हुआ है. चलो कोई बात नहीं है, अर्थ एक ही है, वैसे माना गया है या फिर मत बताया गया है. तो क्या कह रहे हैं? स्वात्मलब्धये, इन ऑर्डर टू रियलाइज द नेचर ऑफ द सेल्फ और इन ऑर्डर टू अटेन द नेचर ऑफ द सेल्फ और द सेल्फ इटसेल्फ. स्वात्मलब्धये, इन ऑर्डर टू अचीव द सेल्फ, व्हाट डज वन नीड टू डू? उपाय क्या करने होंगे? तो आचार्य देव कहते हैं सदृष्टि ज्ञान चारित्र उपायः. इसके उपाय क्या हैं? तो कहते हैं सदृष्टि अर्थात सच्ची दृष्टि. फिर क्या? सत ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान. और फिर कहते हैं सत चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र. सत शब्द जो है वह तीनों ही के अंदर घटित करना है. सदृष्टि, सज्ञान, सच्चारित्र. ठीक है? तो मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? दूसरे शब्दों में कहो, सदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्चारित्र यानी सम्यक चारित्र. उपाय स्वात्मलब्धये, ये आत्मा के उपलब्धि के उपाय हैं. These are the means through which the self can be attained, is what Acharya Deva is saying here. Okay, fairly straightforward. अब आगे कहते हैं उसके अंदर में, मतलब क्या? अभी रत्नत्रय का मार्ग बता दिया ना, यहाँ पे रत्नत्रय को बता दिया. आत्मा की उपलब्धि का मार्ग क्या है? तो कहते हैं रत्नत्रय की एकता, है ना. तो अब इस रत्नत्रय की एकता के भीतर प्रथम आने वाला तत्व, प्रथम आने वाली चीज क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन है. तो इसीलिए इस श्लोक के भीतर अभी सम्यक दर्शन का उपाय कहेंगे, जो हम पूर्व में अनेक ग्रंथों के माध्यम से सुन के आए हैं, है ना. तो क्या कह रहे हैं यहाँ कहते हैं दूसरी लाइन में तत्वे याथात्म संस्थितः आत्मनो दर्शनम स्मृतम मतम. मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह आत्मलब्धि के उपाय हैं. और तत्वे, आत्म तत्व में, या फिर जो तत्व कहे गए हैं सम्यक जैन दर्शन के भीतर जो तत्वों की जो परिभाषा आई है, तत्व जो कह गए हैं, उसमें याथात्म्य संस्थिति, यथार्थ रूप से संस्थिति करना. संस्थिति का अर्थ क्या होता है? उसमें श्रद्धान करना, उनमें अपना जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को बनाना. संस्थिति, याथात्म्य. कैसी संस्थिति? तो कहते हैं याथात्म्य अर्थात यथार्थ रूप से, यथार्थ रूप से तत्वों में बनने वाली संस्थिति अर्थात श्रद्धान. इसी को क्या कहा हुआ है?
आत्मनो दर्शनम स्मृतम, यही आत्मा का दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन माना गया है। तो यह शब्दों का अर्थ हुआ, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा हम अभी विचार करते हैं, है ना। तो देखो, कई लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो होता है इन चीज़ों का, इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रांसलेट दीज वर्ड, सम्यक, राइट, एंड दर्शन, ज्ञान, चारित्र. Some people call it right faith, right knowledge, right conduct. Some people call it rational perception, rational knowledge, rational conduct. All is right. Here, this author is calling it as enlightened vision. Samyak darshan has been called as enlightened vision, enlightened knowledge, and enlightened conduct. It's the same thing. Different word is being used, right? But what it is being meant here is that one needs to have the right vision, or the right perception, or the right faith. Right faith sometimes comes across as rigid. So people who teach in English, right, sometimes they try to modify it a little bit to say it is the rational perception, the right perception, the rational perception, and then the rational knowledge being samyak jnana, and rational charitra, rational conduct being samyak charitra, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, ये तीनों ही जो दशाएं हैं अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। यानी इन तीनों की एकता आत्मलब्धि का कारण है, स्वात्मलब्धि का कारण है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान चारित्रम त्रितये मोक्षस्य कारणम, ऐसा और एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। मतलब क्या कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण नहीं, ध्यान से सुनना इसको, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं। तो क्या, तो कहते हैं जहां सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता जहां बनती है वहां मोक्ष मार्ग है, ऐसा कह रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के जो पहला अध्याय का पहला सूत्र है वो भी यही कहता है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मार्ग अनेक नहीं बताए हैं, उसमें विसर्ग रखा हुआ है, मार्ग कहा हुआ है। तो जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है वे जानेंगे कि मार्गो नहीं है, मार्गो मतलब बहुवचन हो जाता है, अनेक मार्ग नहीं है सम्यक मोक्ष मार्ग के, मार्ग एक ही है। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, द यूनिजन ऑफ रैशनल परसेप्शन नॉलेज कॉन्डक्ट लीड्स टू मोक्षा और इज द पैथ ऑफ मोक्षा। इसीलिए हम अकेला सम्यक दर्शन को मोक्ष नहीं मानते, अकेला सम्यक ज्ञान को मोक्ष नहीं मानते, अकेला सम्यक चारित्र को मोक्ष नहीं मानते, है ना। तो चलिए पश्चात में जो बाद की गाथाएं आएंगी अभी 12-13 की, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का वर्णन है, तब उसको अपन देख लेंगे। अभी यहाँ क्या कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को, सम्यक दर्शन का विषय है। तो सम्यक दर्शन के विषय को इस पर यहाँ पे आचार्य देव ने प्रकाश डाला हुआ है। तो देखिए, जब अपन कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है उनकी एकता मोक्ष मार्ग है, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, वैसा ही प्ररूपण है। लेकिन इसमें सबसे पहली जो विधि है, पहला जो मार्ग है, पहली जो सीढ़ी है, जो सोपान है, द स्टेप इज सम्यक दर्शना। ओके, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने से ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान होने से ही सम्यक चारित्र होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं रहा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, ठीक है। और चारित्र है वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए एक ग्रंथकार ने ऐसा लिखा कि ये दर्शन के सामने ज्ञान और चारित्र ये क्या है, ये 0-0 हैं। 0 को कीमत कब आती है? उसके पहले जो नंबर लगता है तब कीमत आती है 0 को। इफ यू जस्ट रोट 0-0 इट हैज नो वैल्यू, बट इफ यू राइट 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 10, 12, whatever the number comes up before these zeros, then all of a sudden it has value. So the similar thought process works here. दर्शन के कारण ज्ञान है और दर्शन के कारण ही चारित्र है।
इसीलिए चारित्र को, इसीलिए दर्शन को मोक्ष मार्ग में सर्वोपरि इसीलिए माना हुआ है। अपने आप में मार्ग नहीं बनता है, ये भी बात अपने आप में सिद्ध है, लेकिन उस मार्ग को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी है तो वह कड़ी सम्यक दर्शन की है। तो ऐसा सम्यक दर्शन क्या है? तो कहते हैं तत्वे याथात्म संस्थितम, तत्वों में यथार्थ रूप श्रद्धा करना, है ना। तो तत्व हमें पता है कितने हैं, तप्त 7 तत्व हैं। तो सप्त तत्वों के भीतर जो श्रद्धा धारण करते हैं हम, तो उसको यहाँ सम्यक तो कहा है। या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो आत्म तत्वों के भीतर श्रद्धा को धारण करना यह सम्यक दर्शन कहा हुआ है। तो इसी का नाम यहाँ सम्यक्त्व है। अब देखो, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन ग्रंथों में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, शब्द अलग हैं लेकिन भाव सब जगह एक ही है। जब द्रव्यानुयोग के सिद्धांत ग्रंथों में, प्रथमानुयोग में और चरणानुयोग में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की जो परिभाषा आती है वो व्यवहारने की प्रधानता से आती है, और द्रव्यानुयोग के अध्यात्म दर्शन अर्थात अध्यात्म भाग जो बना हुआ है द्रव्यानुयोग का, तो उसमें जब सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हैं तो वह निश्चयने की प्रधानता से आती है। तो याद रखना, ये सभी परिभाषाएं एक मेक की एकार्थक है, पूरक है, meaning that they complement each other, they do not cut across each other, they do not contradict each other, they actually complement each other. It is expressed in a different way, but they are all complementary to each other. और कर्णानुयोग के भीतर जो सम्यक्त्व की परिभाषा आती है वो भावों के आधार से आती है, अंतरंग परिणामों के आधार से आती है, वह सम्यक्त्व की परिभाषा कर्णानुयोग में मिलती है अपने को। तो इस प्रकार के सम्यक्त्व की जो परिभाषाएं हैं वह अलग अलग प्रकार की बनाई हुई है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव ने यहाँ लिख दिया, तत्वे याथात्म संस्थितम, तत्वों के भीतर यथार्थ रूप में संस्थिति करना सो आत्मा का दर्शन है, सो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे भीतर इसका मतलब क्या समझना कि तत्व कितने हैं, फिर हम पूछेंगे तो कहते हैं तत्व 7 हैं, है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो एक अपेक्षा से देखो, इनमें यथार्थ रूप से श्रद्धा करना सो सम्यक दर्शन है, ये एक परिभाषा हुई। और अनेक परिभाषा क्या है जो अपने समय सारजी के भीतर दी हुई है, तो वहाँ पे 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो कहा। 9 पदार्थ क्या है भाई? तो आश्रव को ही जब अपन पुण्याश्रव और पापाश्रव में बदल देते, भाग कर देते हैं, भेद कर देते हैं पुण्य और पाप के, तो सप्त तत्व जो है वो 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो 9 पदार्थों का श्रद्धांशु सम्यक्त्व कहा, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से सम्यक्त्व की परिभाषाएं बताई हुई हैं, और इसका महत्व इसीलिए है कि दर्शन पाहुड़ ग्रंथ के भीतर आचार्य कुंद देव कहते हैं, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथ्य निवाणम। सम्यक दर्शन सर्वोपरि क्यों है? तो इसीलिए है, कहते हैं दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वे तो महाभ्रष्ट हैं। देखो ध्यान से सुनना भाई, भगवंतों की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी है, बहुत गंभीर रहती है। कह रहे हैं दंसन भट्टा भट्टा, दंसन से जो भ्रष्ट हैं तो महाभ्रष्ट हैं। दंसन भट्टा निर्वाणम नथि, भट्टस्य निर्वाणम नथि, जो दर्शन से भ्रष्ट है उन्हें कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, है ना। फिर बाद में कहते हैं सिद्धंति चिरिय भट्टा। अब यहां कह रहे हैं आचार्य कुंद देव कि चारित्र से जो भ्रष्ट है उनको तो मोक्ष मिल जाता है। दंसन भट्टान सिद्धंति, दर्शन से भ्रष्ट है उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता। मतलब क्या, जो भ्रष्ट चारित्र वाले हैं वो मोक्ष को जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं क्या आचार्य कुंद देव? ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आचार्य कुंद देव ये कह रहे हैं दर्शन से अगर कोई भ्रष्ट हुआ तो उसको किसी कारण में, किसी भी पर्याय में, किसी भी अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के रहते हुए किसी कोई समझो कोई चारित्र से भ्रष्ट हो गया,
मतलब चारित्र से दूषण आ गया उसमें, चारित्र को उसने दूषित कर दिया। तो यहाँ पे कहते हैं फिर भी चारित्र को सुधारा जा सकता है। चारित्र को सुधारा कैसे जाएंगे? तो प्रायश्चित्त लेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, अपने दोषों को बताएंगे, ऐसा सब करके वापस चारित्र के भीतर स्थित हो जाएंगे भाई। तो ये मार्ग उनके लिए खुला है जिनका सम्यक तो स्ट्रांग है, जिनको सम्यक दर्शन है। इसीलिए दोनों के बीच में यहां बोल रहे हैं चारित्र से भी बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो दर्शन है, क्योंकि चारित्र को सुधारा जा सकता है। सिद्धंती चिरिय भट्टा दंसन भट्टाण सिद्धंती। लेकिन दर्शन से अगर कोई भ्रष्ट हो गया, जब तक वो वापस सुधारेगा नहीं तो उसको कोई मार्ग मिलने नहीं वाला है। मतलब चारित्र कितना ही तुम सुधारो, अगर मूल में दर्शन ही भ्रष्ट है तो आगे का मार्ग ही नहीं खुलने वाला है। ये इसका अभिप्राय है गाथा का। और इसी से मोक्ष मार्ग के भीतर सम्यक तो कितना प्रधान है यह अपने को पता चलता है ना। तो ये बात अपने को याद रखनी है। दूसरी बात, अब जहां पे यहां कह रहे हैं सप्त तत्वों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, तो इतनी ही परिभाषा है क्या? ऐसा नहीं है। अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की परिभाषाएं आई हैं, है ना। तो दर्शन पाहुड़ ग्रंथ जो आचार्य कुंद का ही लिखा हुआ ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से अपन ने अभी ये गाथा देखी, उसी ग्रंथ के भीतर आचार्य देव ने और एक गाथा लिखी है। पूरा सारा विषय सम्यक दर्शन का ही है दर्शन पाहुड़ में, है ना। कभी उसको लेंगे अपन। तो उसमें 19 नंबर की गाथा अपने को मिलती है, जिसमें आचार्य देव अब कहते हैं सम्यक तो और एक तरफ से सुनो क्या। तो कहते हैं जो व्यक्ति 27 पदार्थों का श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि है। अब मात्र यहां 7 नहीं कह रहे हैं, एक अपेक्षा से सुनो तो कह रहे हैं सप्त तत्वों का श्रद्धान करने वाला सो सम्यक दृष्टि। और एक प्रकार से यहां कह रहे हैं कि 27 पदार्थों में श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है। तो फिर प्रश्न आता है भाई कि 27 पदार्थ कौन से हैं? 27 पदार्थ को हम कैसे गुनेंगे? तो आचार्य देव ने गाथा लिख दी। छह दव्व नव पयत्था पंचत्ति सत्त तच्चनी दिठा सद्दहई ताणरुवम सो सद्दिठी मुणे यवो। ये गाथा जो है दर्शन पाहुड़ के भीतर आती है, आचार्य कुंद देव द्वारा लिखी हुई गाथा है। तो क्या कह रहे हैं उसमें? कहते हैं जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित षड द्रव्य, 6 हो गए, 5 अस्तिकाय, 6 और 5 कितना हो गए? 11 हो गए। हाँ, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय, फिर सप्त तत्व 7 और 11 18 हो गए, है ना। और उसके बाद 9 पदार्थ कितने हो गए? षड द्रव्य 5 अस्तिकाय सप्त तत्व 9 पदार्थ। इनमें जो श्रद्धान करता है, अर्थात इनका जोड़ मिलाने पर 27 हो जाते हैं ये, तो कहते हैं इनका जो श्रद्धान करता है उसको जिनेंद्र देव ने सम्यक दृष्टि कहा है। मतलब क्या? मतलब जो द्रव्याण योग के भीतर जो प्ररूपणाएं आई हुई हैं, द्रव्य संबंधी, तत्व संबंधी, पदार्थ संबंधी, काय संबंधी, उन सभी का यथार्थ रूप से श्रद्धान करने वाला जीव सम्यक दृष्टि कहा हुआ है। यह एक अपेक्षा अपने को यहां ग्रहण करना है। तो उसमें देखा जाए तो उसमें तत्व आ ही गए, है ना। फिर कोई कहेगा कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के भीतर तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक तो कहा हुआ है, तो उसको यहां कैसे बिठाएंगे? तो भाई उसको ऐसे बिठाएंगे कि सम्यक सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा मतलब क्या है, सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का श्रद्धा स्वरूप क्या है, ये सब इन 27 पदार्थों के भीतर झलक जाता है। तो इन 27 पदार्थों का श्रद्धान सो ही वहां पे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा। तो इसीलिए इन सब परिभाषाओं में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एकार्थकवाची हैं, है ना। दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशंस।
तो इस प्रकार से यहाँ कह दिया कि 27 पदार्थों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, ये और एक यहाँ पे एक दृष्टि हो गई। अब देखिए अपन इस विषय पे आते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को कब बनती है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मतलब उसके लिए जो लक्षण बताए हैं, उसके लिए जो कारण बताए हैं, वे कारण ऐसे क्या हैं जिन कारणों से जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर जाता है ना। एक पंचलब्धि का विषय है, वह पंचलब्धि का विषय नहीं लेंगे आज, वो अलग विषय है अपने आप में। अपन इस ग्रंथ को पढ़ते हुए जैसे अपन ने भी अष्टपाहुड़ की एक गाथा ली है, अब हम यहाँ पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की शरण में जाएंगे। ठीक है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ में धर्मानुप्रेक्षा नाम का अध्याय है। उस धर्मानुप्रेक्षा ग्रंथ के अध्याय के भीतर आचार्य देव ने सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य कौन हैं इसका निरूपण किया हुआ है कि हम सम्यक्त्व की इतनी बात करते हैं भाई, तो सम्यक्त्व प्राप्त किसको हो सकता है, कौन से ऐसे 7, उनको कहा कि ये 7 नियामक कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। तो जब ये होंगे तो सम्यक दर्शन वहां हो सकता है, ऐसा कहा। तो वो क्या हैं, तो देखिए आचार्य कुमार कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं। चदुगति भवो सन्नी सुविशुद्धो जगमाण पजतो संसार तड़े नियड़ो नानी पावे सम्मतम। Please move the page. बहुत ही सुंदर गाथा है ना। What I am explaining to you is not on this page, okay? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कहते हैं सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए 7 नियामक कारण बनते हैं। ठीक है, पहला नियामक कारण सम्यक दर्शन के लिए क्या है, तो कहते हैं भव्वो सन्नी। क्या कह रहे हैं, पहला कारण है कि वह जीव भव्यत्व से सहित होना चाहिए, भव्य जीव होना चाहिए। अभव्य जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती है। जो भव्य है उस भव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, यह पहली कंडीशन हुई, भव्यत्व। दूसरी कंडीशन क्या है, सन्नी, मतलब क्या, जो पंचेंद्रिय सग्गी जीव हैं, सदनी है, ये दूसरी कंडीशन हुई। मतलब 5 इंद्रियों और मन, वन हु इज कंप्लीट विथ 5 सेंसेस एंड माइंड। माइंड का होना बहुत जरूरी है, जिसको माइंड नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए यह कहा कि पंचेंद्रिय सदनी जीव, ये दूसरी नियामकता है, सेकंड रीजन, सेकंड कारण। तीसरा क्या कहा, सुविशुद्धो, जो विशुद्ध परिणाम वाला हो। विशुद्ध परिणाम वाला हो मतलब क्या, तो देखो एक नियम है, देर आर सम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, देर आर सम यूनिवर्सल रूल्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इन जैनिज्म। ओके, सो वन ऑफ दोज यूनिवर्सल रूल्स इन रिगार्ड्स टू सम्यक्त्व इज एज फॉलोज। जब सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जीव योग्य बन जाता है, जब उसे सम्यक्त्व प्राप्ति होगी, यानी अर्थात पंचलब्धि के अनुसार से करणलब्धि को जब वो प्राप्त हो जाएगा, तब उसमें जो उसकी जो विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि से अगर सहित होगा तो ही सम्यक्त्व का पात्र है। मतलब क्या, मतलब अब सिद्धांत निकालते हैं अपन कि जो सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय में कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा वाला जीव अगर होगा तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो कौन सी लेशाएं चाहिए, कहते हैं पीत, पद्म और शुक्ल, 6 लेशाएं हैं ना। तो 6 लेशाओं में से जिसको पीत, पद्म और शुक्ल लेशा है, जिस मिथ्या दृष्टि जीव को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक्त्व बनेगा ना, तो अगर वो कृष्ण नील कापोत लेशा वाला है तब तो वो सम्यक्त्व का प्राप्त पात्र नहीं कहा।
तो सुविशुद्ध परिणाम का अर्थ यहाँ ये लेना है, कृष्ण नील कापोत को छोड़ के पीत पद्म शुक्ल लेशा वाला जो है वह सम्यक्त्व का प्राप्त कर सकता है। कितने कारण बने? 3, भव्य होना, पंचेंद्रिय सज्ञ होना और विशुद्ध परिणाम वाला होना, 3। और अभी 4 बचे हैं। चौथा क्या है? तो कहते हैं जग्गमाण, जागृत जिसकी अवस्था हो। जागृत अवस्था मतलब क्या? कि जो विवेकपूर्ण जागृत अवस्था, मतलब सोते हुए प्रमत्त अवस्था के भीतर, धुंध की अवस्था के भीतर सोते हुए ऐसे सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए इसको कहा कि जागृत अवस्था जब जिसकी होती है तब वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। जग्गमाण कहा उसे, जागृत अवस्था, चौथी कंडीशन। 5वीं कहते हैं पर्याप्तक। पर्याप्तक यानी क्या? देखो, द्रव्य संग्रह का अपन ने जब स्वाध्याय किया था तो अपन पर्याप्तियां जानी थी, 6 पर्याप्तियां होती है ना। उन सभी पर्याप्तियों से सहित जो जीव होता है वह सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है, यानी 6 पर्याप्तियां उसके लिए आवश्यक है। कितनी हो गई टोटल? 5 हो गई। ओके, 6वां अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। संसार तड़े नियड़ो, कहते हैं संसार तट के समुद्र, संसार तट के पास में जो है, अर्थात जिसका संसार अभी खत्म होने ही वाला है, कम बच गया है। संसार तड़े नियड़ो मतलब संसार के समीप वाला, मतलब क्या? अनंत रूपी संसार जो है, उस अनंत रूपी संसार को क्षय करके जिसने अभी मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सिद्धांतिक भाषा में इसका अर्थ यह निकलता है कि जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र संसार शेष रह गया हो, इसे ही कहते हैं काल लब्धि की प्राप्ति होना सम्यक्त्व के विषय में, है ना। थोड़ा हेवी हो रहा है तो बताना मेरे को बाद में, कोई प्रश्न है तो। लेकिन ये काल लब्धि की प्राप्ति अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के शेष रहने पर ऐसी काल लब्धि वाला वो जीव हो जाता है जो सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ये कितने हो गए? 6 कारण हो गए। और अंतिम कारण यहां आचार्य देव कहते हैं नाणी पवेयी सम्मतम, जो जीव ज्ञानी हो। ज्ञानी मतलब कैसा? विवेक से सहित, अर्थात ज्ञान रूपी उपयोग को धारण करने वाला, ज्ञानोपयोग से सहित है ऐसा, मतलब उसका उपयोग जो है साकार रूप हो, निर्विकार नहीं, साकार रूप जिसका उपयोग हो, या कि यानी ज्ञान के विशेष क्षोभम वाला हो। तो कहते हैं ऐसा ज्ञानोपयोग जिसको प्राप्त होता है, ये सभी 7 नियामक कारण जो हैं जब बनते हैं तो कहते हैं जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। बहुत सुंदर जो है निरूपण यहाँ कार्तिकेयन उपप्रेक्षा ग्रंथ के भीतर आया हुआ है। चूँकि ये विषय उसी को लेके हुए हैं इसलिए मैंने आज विषय को यहाँ पे लिया हुआ है अन्य ग्रंथ से। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि 7 प्रकार की इन नियामक कारण जहाँ प्राप्त होते हैं तो वहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य जीव बन जाता है और तब वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है। और अंतरंग भाव से रूप से जब हम देखते हैं तब क्या कहते हैं कर्णानुयोग में, तो ऐसे जीव की 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय क्षोभम होता है। ऐसा होने से उसके 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय क्षोभम होता है। मतलब क्या? 7 कर्म प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इनका क्षोभम जब हो जाता है अंतरंग में, वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर जाता है। देखो, ये सारे अंतरंग कारण हैं। अभी जो मैंने 7 ये कारण बताए हैं, नहीं, ये जो 7 कर्मों का क्षय क्षोभम जो कहा हुआ है, ये सम्यक्त्व का अंतरंग कारण है ना। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व को अलग अलग भाषाओं में परिभाषित हमारे आचार्यों ने किया हुआ है ना। तो इसके लिए जो अपन ने पूर्व में देखा, जब ऐसा होगा, जब ऐसा कर्म का क्षय क्षोभम जब होगा
तब आचार्य देव यहाँ कहते हैं वह 7 कारण नियामक रूप से वहाँ होंगे। वह जीव भव्य होगा, वह पंचेंद्रिय सद्नी होगा, वह पर्याप्तक होगा, वह विशुद्धि परिणाम वाला होगा, उसको काल लब्धि की प्राप्ति होगी, उसकी जागृत अवस्था होगी और वो ज्ञानी होगा, है ना। तो ऐसी सब अवस्था के भीतर जब हम प्राप्त कर जाते हैं तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए सम्यक्त्व को पाना सहज नहीं है, दुर्लभ है ना, लेकिन प्रयत्न साध्य है। मतलब क्या, वी कैन एम, वी कैन वर्क हार्ड टू अचीव इट even in today's time. Acharya Kundakunda Deva has said that if somebody thinks that Samyak Darshan is possible in today's time, in 5th era of the time, they said they are wrong. सम्यक्त्व की घटना जो है, सम्यक्त्व आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अगम वचन है ना। तो इसी के संदर्भ में देखो, मैंने एक छोटा सा वीडियो भेजा हुआ था, है ना, जो सम्यक्त्व की महत्ता को और दुर्लभता को दर्शाने वाला। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो इसी के संदर्भ में था। तो ऐसे इस प्रकार की जो है परिभाषा अपने को आज मिलती है। और इस 11 नंबर के श्लोक के भीतर सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ इस प्रकार से आचार्य देव ने किया हुआ है। तो अब यहीं पे अपन विराम लेते हैं। अगली जो गाथा है वो अगले समय जब अपन आएंगे तो सम्यक ज्ञान की अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो इस संबंध में या फिर कोई और संबंध में कोई प्रश्नोत्तरी वगैरह है तो अपन थोड़ी देर के लिए उसको कर सकते हैं, है ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।